Oh, Babuji, would you like to have some chapati? Chapati. I'm telling you, sister, I'm not very fond. But if you shall give me, I will have. I have a cook, and she can cook very good Indian food. She's not here at the moment, but she's coming on Friday. So on Friday we will have chapati. ऑल राइट, ये ठीक रहेगा. कल सुबह ब्रेड कम खाना. वैसे भी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. और कल हमें चपाती भी मिलने वाली है. Babuji, you're already here. Oh, Sister Veera, I had nothing to do, so I thought I will come in and sit here. Okay, so I'll bring you the food immediately. You don't worry. We Okay. are just sitting here. Okay. Oh, Babuji, we have been cooking chapati all day now for you. I hope you will like it. Thank you, sister. This is for you. Chapatis, especially for you. थैंक यू सिस्टर. ये चपाती तो नहीं लगती. साहब पापड़ हैं, लेकिन कुछ कहिएगा नहीं, इनको बुरा लगेगा. Please have some. Sister, I am suddenly feeling some ache. Really? I will go. What about the chapati? Sister, if I feel light, I shall have later. Chariji, please have some chapati. How could I eat if my master is not eating? I'll eat with him. Don't worry. Cherry, what is this thing you're serving us? This is chapati. And what was the thing that we gave you the other day? That was papad. आज हमारे यूएस का 3 हफ्ते का टूर खत्म हो रहा है. डॉक्टर सिंह, आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था. Chari, how cruel are you? You are taking our master away from us. Can't he stay with us for some more time? Dr. Singh, I understand your love and concern for Babuji. But we must leave. Master will be in Europe for some time. And the tour is long. And I'm concerned about his health. But the good thing is that the flight to Copenhagen is direct. We will have to leave. Philosophy gives happiness from without, and I give happiness from within. But by talking, I also give happiness from without. So I give happiness from both within and without. Master, you know the protons and neutrons in the nucleus of an atom. Are they ultimate particles, or is there anything beyond? Well, I'm telling you, if these particles were simple at the base and also simple outside, they would be God. Master, what is wisdom? It is the proper utilization of the power of God.
Babuji, you talk of spirituality, but science has made so much progress. Scientists today can even show what an atom looks like. पेन और पेपर लेके आओ. जी. Is this how it is supposed to be? Babuji, how did you know this? They told me you only studied to class 6. This model is part of Bohr's theory. You need to be at least a graduate to understand this. Well, this is spirituality. While you were talking, I penetrated matter. Babuji, are you leaving us again and going to Germany? Yes, sister. I have work there. Wherever Lalaji says, I go. Look here. It is really not my decision, but his. Master, I can recognize Abhyasis just by looking at their eyes. How? I've noticed that Abhyasis in the mission in India have happy eyes. Master, are you happy? Really speaking, I have not tasted the effect of happiness. I cannot remember ever being happy, but of course, I can define happiness. One who is happy under all circumstances is happy. But I am telling you one thing. Happiness is heavier than tranquility. I think pain is near to God. That is my idea. But of course, I may be wrong. But look here, sometimes when I am in great pain, I also growing, there is some peculiar enjoyment in it also. Master, is it necessary to have pain to get closer to the God? It is not necessary. It is for me alone. My master used to suffer from great pain. He had abscess of the liver and he used to suffer very much. But when he was in great pain, he used to sing. I asked him why. He told me that when one is suffering, he has to make some noise. So why not sing and make some noise? My master once told me he could have removed his trouble in 1 minute, but he did not do so because he thought it was given to him by God. And he felt there must have been some reason to it. This was my master's submission to the divine will. Master, what is nature of fear? Fear is the hallucination of wisdom. If wisdom is right, there can be no fear. Women are the hallucination of men. Babuji, please, can you explain? पार्थ सारथी, अब तुम इनको समझाओ. In my opinion, it is true because it is man who endows all the romantic qualities to woman and in the process becomes a poet, comparing her hair to a rain-laden cloud, her eyebrows to bow, and her eyes to stars and so on. All this man creates in his imagination without any real relevance to reality. And so women certainly is the hallucination of men. I think that is well explained. Do you think hallucination is Maya? No. Maya is normally said to be illusion, but I do not agree with this. I think Maya is the power of God. When we do not understand how this power works, we think it is Maya. So, really speaking, it is our ignorance. Intellectuals borrow knowledge. Divine personality creates knowledge. Master, I came with lots of questions, but I don't remember them now. You came with questions. The questions are washed away, and now only you remain. Namaste.
बाबूजी, आपकी हुक्के वाली बास्केट जो जर्मन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने खो दी थी, वो मिस्टर मूर्ति ने ट्रेस कर ली है। भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं हुक्का बना कर लाता हूँ। ठीक। अच्छा। Master, what is most important for the development of spirituality? I want heart like an Indian and mind like an European. You understand? I have said somewhere that God has no mind. He has no mind. If he had a mind, he would also form sanskaras. भाई वो कहा गया हमारा। तो मुक्का ले आए। जी, लीजिए। लाओ। Babuji, we'll go to see Switzerland tomorrow. What is there in Switzerland to see? Mountains, trees, I have seen them all. While on the train. Geneva, I have seen. So I know what Switzerland is like now. Master, how to define God? If you take away all the adjectives in this world, then what is left is God. Babuji, why has God created this world where there is so much troubles and miseries? I will tell you. If energy does not manifest itself, it will solidify and lose itself, and God would be no more. So, to preserve his life, God set forth energy, and creation resulted. कौन है वहां? तुम यहां क्या कर रहे हो? पार्थसारथी, तुम्हें हमारे बिस्तर पर आने से पहले हमारी परमिशन लेनी चाहिए। बाबूजी, आप किससे बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो एक भूत था। हम सोच रहे थे कि यहां कैसे आ गया। पार्थसारथी, तुम्हें भूतों से डर लगता है क्या? हाँ बाबूजी। तुम्हें उनसे काम लेना सीखना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम एक ब्रह्म राक्षस को यहां बुला सकते हैं, जो भूतों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और हम दिखा सकते हैं कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। बाबूजी, वो तो ठीक है, पर फिर कभी सीख सकते हैं। असल में मुझे रात में बाथरूम में जाना पड़ता है। Chari, it was long and tiresome journey for you. Yeah, it was very long and tiresome journey, and that too without food and water. Overall, it was a 5-hour journey, very tiresome for the master. He was dead tired at the end of his enormous resistance. I am wondering how Babaji took so much strain. Babuji was in extremely bad situation. He shocked and frightened me to the core, saying, I hope I shall reach home safely. And you know, at the terminal, he was hardly able to walk. I fear that Master is almost in the state of collapse, so let me call the doctor immediately. कौन है ये? बाबूजी डॉक्टर हैं, आपका चेकअप करने आए हैं। डॉक्टर? जी। इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे हमारे? नहीं बाबूजी, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, रूटीन चेकअप है। You seem to be in great pain, but you don't show it in your face. Who is he? He's my spiritual guru. Oh, I'm so lucky to meet him.
You will be fine, sir. I've given you some medicines, and you'll be fine in a few days. Please, he must have complete bed rest. Call me in a few days. लाला जी साहब की कृपा से आज हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बाबूजी, आपकी तबीयत एक पल में बिगड़ जाती है और एक पल में ठीक भी हो जाती है। ये सब लाला जी साहब की कृपा है। पार्थ सारथी, हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए? बाबूजी, लगभग 2.5 महीने हो गए हैं और इस 2.5 महीने में हमने यूरोप और यूएस की यात्रा करी है और जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। हमारा भी यही मानना है। ये सब लाला जी साहब का आशीर्वाद है। बाबूजी, इटली में अब की बार काफ़ी प्रोग्रेस होने के आसार हैं। जो वहाँ पर कमेटी बनाई है वो काफ़ी अच्छी है और उससे मिशन में काफ़ी प्रोग्रेस होगी। हमारा भी यही मानना है। देखो, ये सब लाला जी साहब की कृपा है। बाबूजी, अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। 2 जुलाई को हम लोग वापस इंडिया जा रहे हैं। हो गया बाबूजी। देखो भाई पार्थ सारथी, इस यात्रा से तुम्हें भी बहुत फायदे हुए हैं। क्या बाबूजी? कम से कम 3 नए काम तो तुम सीख गए हो। बाल काटना, कपड़े धोना, खाना बनाना। अगर किसी वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो कम से कम ये 3 काम करके तो तुम अब पैसे कमा लोगे। बाबूजी, आप शायद कुछ काम कर रहे थे। भाई तुम प्रिसेप्टर हो, तुम्हें रीडिंग कैपेसिटी दी गई है। तुम बताओ हम क्या कर रहे थे? बाबूजी, आप प्रेजेंट में तो काम नहीं कर रहे थे। शाबाश। अब ये बताओ कि हम पास्ट में थे या फ्यूचर में? बाबूजी, आप शायद फ्यूचर में काम कर रहे थे। बहुत अच्छे। ये बताना सबके लिए बहुत मुश्किल है कि पास्ट में थे या फ्यूचर में। असल में हमारे पास इस वक्त कुछ समय खाली था और हमें खाली बैठने की इजाज़त तो है नहीं। तो हमने सोचा कि जो महाप्रलय के समय पर्सनालिटी आएगी उसका कुछ काम कर दें। बाबूजी, महाप्रलय के समय डिस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट होगा? महाप्रलय के समय ध्रुव तारा अपनी जगह से कुछ हिल जाएगा और शक्तिशाली ऊर्जा उसमें से निकलेगी और धरती का विनाश कर देगी। धरती का विनाश उत्तर की दिशा से शुरू होगा, पर यह बहुत आगे की बात है। अभी इसके बारे में हम कुछ बताना नहीं चाहते। We have assembled here on a very auspicious occasion to celebrate the birth centenary of our great master, Samarth Guru Sri Ramchandra Ji Maharaj of Fatehgarh, UP. We should utilize this occasion in getting into the master and master alone, which will act as food and tonic for spiritual elevation. Remembrance should be in a way that we feel the thought of remembrance oozing out from the objects everywhere. It is the real remembrance which mortals can have. It is a play for our good. Now a new chapter opens in the web of life. बाबूजी बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। परसों करीब 1 बजे हम लोग बात कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे कह रहे थे,
बेटी, जब हमने मिशन की शुरुआत की थी सिर्फ 3 या 4 लोग थे, और तब हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मास्टर की 100वीं सालगिरह 1,500 लोगों के साथ मनाएंगे। यहाँ के लोगों ने काफ़ी काम किया है। जब आप महीन आवाज करते हैं तो आप ब्रह्मांडीय सुर से नहीं मिल पाते, उससे कुछ नीचे रह जाते हैं। बाबूजी 7 नोट? हाँ, 7 नोट, पर अब तो हमें याद नहीं कि क्या होते हैं। अब तो आपको बताना पड़ेगा बाबूजी, सिर्फ ये कहने से क्या होगा। लाला जी साहब ने बताया कि जब पिंडीय सुर ब्रह्मांडीय सुर में मिला दिया जाता है तब वो इफेक्ट पैदा होता है। अब ये आई करके तो हमसे बताया नहीं जाता। बाबूजी, अब तो आपको गा के ही सुनाना होगा। अब हमारा सुर नहीं लगता। बाबूजी, अब तो आपको गाना होगा। अच्छा, आप कोशिश करते हैं। दीनन दुख हरन नाथ दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। दीनन दुख हरन नाथ दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। दीनन दुख हरन नाथ। The centenary has been financially a great success. Donation received 47,002 rupees. Souvenir advertisements 69,658. Batch sale taken to general account. Souvenir sales 7,470. Total 1,24,130. Total expenses 36,075. Profit to mission 88,000 rupees. Master has instructed that the profit should be earmarked as the nucleus of a separate fund for the construction of a mission ashram at Madras. आज हमारी पीठ में बहुत दर्द है और पेट भी खराब है। खट्टी डकारें आ रही हैं। बाबूजी, आपको इतनी सारी तकलीफें हैं, फिर भी आप यहाँ रह करके सब अभ्यासियों का ख्याल रखते हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? हम बसंत के बाद मद्रास जाके किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवाएंगे। ये अच्छा रहेगा बाबूजी। अरे, आप आ गए। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। आज शाहजहांपुर से ग्रेस किम्बरली भी आए हैं। उन्होंने बताया कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। उनके पेट और पीठ में भी काफ़ी दर्द हो रहा है और अल्सर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही साथ उनका खाना पीना भी काफ़ी कम हो गया है, जिससे काफ़ी कमज़ोरी भी आ रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे सुनिए, शाहजहांपुर से प्रकाश का टेलीग्राम आया है। पढ़ो। Father's illness persists. Consultation necessary. Please come. माय ब्रदर मिमानी जो शाहजहांपुर में है, उनसे बोलता हूँ कि सिचुएशन का पता करें और मुझे टेलीग्राम करें। Father admitted in the Vivekanand Hospital in Lucknow. आओ पार्थ सारथी। अब तबीयत कैसी है बाबूजी? अब ठीक है। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं कई दिन तक सो भी नहीं पाई। अब आप आ गए हैं तो इन्हें अपने साथ मद्रास ले जाकर पूरा चेकअप कराएं और अच्छे से इलाज कराइएगा। हमें कल शाहजहांपुर जाना है। आप लोग हमें अब
डिस्चार्ज करवा दें। लेकिन बाबूजी, डॉक्टर्स ने अभी आपको डिस्चार्ज करने से मना किया है। हमने आज काशीराम को भी बुलवा लिया है। आप लोगों को हमें डिस्चार्ज करवाना ही होगा। पार्थ सारथी, हमें मालूम है कि तुम हमें मद्रास ले जाने के लिए आए हो। हम मद्रास ज़रूर चलेंगे, मगर ज़रा हमारी तबीयत कुछ ठीक हो जाए, जो शाहजहांपुर जाकर ही हो सकती है। वहाँ जाकर हमें एक बहुत ज़रूरी काम भी करना है, और इस काम को किए बगैर हमें चैन नहीं आएगा। चलिए। बाबूजी किस काम की बात कर रहे हैं? एक काम तो ये कि बाबूजी सर्वेश की शादी करवाना चाहते हैं। अब सर्वेश यहाँ मौजूद है तो बाबूजी चाहते हैं कि उनकी शादी तय कर दें। और दूसरे काम के बारे में बाबूजी ने कहा, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही पार्थ सारथी को चुन लिया है। इसके बारे में अभी उन्होंने किसी को बताया नहीं है। शायद वो इसी के बारे में कह रहे होंगे। मेरा डर सही था। मुझे ये जान के खुशी हुई कि बाबूजी ने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, पर यह सोच के काफ़ी चिंता होती है कि यह काम बड़े उत्तरदायित्व का है। बाबूजी, आप मद्रास से जैकी और डॉन को बुला लीजिए। वो दोनों ट्रेंड और रजिस्टर्ड नर्स हैं, आपकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। हाँ ठीक है। तुम्हें याद है, हमने कहा था कि हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है। अब हम चाहते हैं कि तुम मिशन का काम अपने ऊपर ले लो। बेशक हम रहेंगे, लेकिन हम कुछ और काम करेंगे। एक बात और हम बताते हैं, पिछले 4-5 साल से जब भी हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचते हैं, हम पाते हैं कि वो साउथ से ही होगा। अब वक्त आ गया है, हमें अपना रिप्रेजेंटेशन कर देना चाहिए। किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। हर काम अपने वक्त पर होना चाहिए। पार्थ सारथी, हम तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। मास्टर, ना तो मेरे अंदर काबिलियत है और ना ही कोई इच्छा। देखो, तुम लाला जी की पसंद हो और हमारी भी। ये लाला जी की कृपा है कि इतने कम वक्त में लोग तैयार कर दिए जाते हैं और काम में लगा दिए जाते हैं। लाला जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और मिशन हर जगह फैलेगा। यह अभी भी फैल रहा है और फैलता ही जाएगा। अब तुम ये बताओ, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करें, अपॉइंटेड या कुछ और? बाबूजी, नॉमिनेट वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये ठीक है। यह सुनने में भी अच्छा लगता है। हमने इसके बारे में बाबू रघुनंदन प्रसाद जी से भी बात कर ली है। वो माया के ससुर हैं और बड़े काबिल इंसान हैं। अब तुम समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं। तुम्हें साइन कागज़ भी हम भेज देंगे, लेकिन हमें अभी ये सोचना है कि हमें इस बारे में अभी सबको बताना है या नहीं। शाहजहांपुर, 19 March 1974. My dear Parth Sarthi, I have issued a certificate which I am sending with this letter. Preserve this certificate as valuable document. You start working, giving translation to the East and West and helping the men throughout the world. When I compare myself with you, I find that I have got an enormous power. Here and I reveal myself. I am bewildered how to infuse so much power. It is my master and my master alone who will make the way for it. Your affectionately, Ramchandra. I hereby nominate my disciple Shri P. Rajgopalachari as my representative to work for the mission as president in Sahaj Marg system. As long as I live, I will be doing my job.
Afterwards, he will enjoy full-fledged authority given by the Constitution and by laws of the mission. May God's grace shower through him to all mankind. मदुरई में एक सत्संग के दौरान मेरे मन में ये भावना आई कि आज तक मिशन और मेथड के बारे में तो बहुत लोगों ने लिखा है, पर अभी तक मास्टर के बारे में किसी ने नहीं लिखा। क्यों ना मैं गुरु दक्षिणा के रूप में बाबूजी के बारे में एक किताब लिखूं। और मुझे ऐसा लगा जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आज से ये किताब लिखना शुरू कर रहा हूँ और हर चैप्टर को ख़त्म करके बाबूजी को भेजता रहूँगा और मैं इस किताब को माय मास्टर कहूँगा। नमस्ते। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आपका सफ़र कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सफर एकदम अच्छा रहा। अभी क्या बजा है? 10 बजा है बाबूजी। अभी आश्रम साइट पे काम भी देखने जाना है। आप जज साहब को एक सिटिंग दे दीजिए। मुझसे तो नहीं कह रहे होंगे, मुझे तो प्रिसेप्टर बने हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। मैं भला जस्टिस एमएल चतुर्वेदी जैसे पहुंचे हुए आदमी को क्या सिटिंग दूंगा? गुप्ता जी, बाबूजी आपको सिटिंग देने के लिए कह रहे हैं। मुझे बाबूजी? हाँ जी बाबूजी। मैं इनको क्या सिटिंग दूंगा? बस ये है कि बूढ़े आदमी हैं, कहीं 20-25 मिनट से ज़्यादा बिठा रखा तो अच्छा नहीं होगा, और अगर कम किया तो कहेंगे कि क्या प्रिसेप्टर है। ये तो अच्छा है कि मैंने टाइम का अंदाज़ा करने के लिए हाथों में गिनना सीख रखा है। हाँ, मैं यही करूँगा। प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेशन। That's all. बहुत बढ़िया, ठीक 22 मिनट हुए हैं। अरे चलो अच्छा है, गिनने की विधि तो काम आ गई। तुम भी चलो साथ में। आपकी सिटिंग कैसी रही? ट्रांसमिशन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ये नया लड़का तैयार किया है हमने। अच्छा, ये क्या? मैंने क्या किया? सिर्फ हाथ पीछे करके नंबर गिने और ये बात कर रहे हैं कि मेरे ट्रांसमिशन की क्वालिटी क्या थी। लगता है ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक ढकोसला है। मैं बेकार में अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ। कल से मैं नहीं आऊँगा यहाँ। भाई, तुम्हें आज हमने 3 चीज़ें सिखाई। पहली चीज़ तो यह है कि प्रिसेप्टर कभी ये न सोचे कि वो खुद सिटिंग दे रहा है। काम हमेशा मास्टर करता है, प्रिसेप्टर नहीं। और दूसरी चीज़, कभी ये न सोचे कि प्रिसेप्टर इसलिए अभ्यासी को सिटिंग दे पाता है क्योंकि उसकी हालत उससे ऊंची है। अभ्यासी की हालत प्रिसेप्टर से 10 गुना ऊंची हो सकती है, फिर भी वो उसको सिटिंग दे सकता है। और तीसरी बात ये कि तुम्हें प्रिसेप्टर हमने बनाया है। कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए तुम उसको सेटिंग दे सकते हो। अब चाहे अल्लाह मियाँ खुद भी आके सेटिंग मांगे तो हिचकिचाना नहीं। अरे भाई, हमारी लाठी और टोपी ले आओ। भाई, हम चाहते यही हैं कि आश्रम के कंस्ट्रक्शन का काम उम्दा क्वालिटी का हो। चलिए इंजीनियर साहब, आश्रम का मुआयना करके आते हैं।
मुझे लग रहे हैं बाथरूम छोटे बन गए। बाबूजी आते नहीं उनको दिखा देते। अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि बाबूजी को कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? बाबूजी रहते तो अपने घर पर हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस आश्रम के निर्माण पर लगा रहता है। एक एक छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से देखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि तुम यहाँ जो भी कर रहे हो उस पर बाबूजी की नज़र हमेशा रहती है। भैया ये तो सब कहने की बात है। बस 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 बस। भैया कितने पैसे हुए? 5 रुपये हो गए जी। ये तो गलत बात है, हमारे घर से 4.5 होते हैं। 4.5 थे तब थे, अब तो 5 हो गए जी। लो लो जी। अगर ज़रूरत हो तो 10,000 भी खर्च करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, मगर 10 पैसे भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। वेस्टेज इज़ इमोरल। पहले बाथरूम देख लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन हॉल देख लेंगे। बाबूजी ये बाथरूम। ये चौड़ाई तो हमें ठीक लगती है। कहो भैया, कैसा चल रहा है काम? मेडिटेशन हॉल का काम पूरा हो चुका है। संगमरमर की फर्श करीब करीब पूरी होने वाली है। बिजली का काम हो चुका है और मंच के फर्श का काम अभी थोड़ा बाकी है। हम इस हॉल को इतना चार्ज कर देना चाहते हैं कि अभ्यासी यहाँ के बेहोश हो जाएं, मगर लाला जी साहब इजाज़त नहीं दे रहे हैं। फिर भी हमने इतना तो कर ही दिया है कि इसे 10,000 साल तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें तो मालूम है फंड्स की कमी है, काम पूरा हो जाएगा। बाबूजी आपके आशीर्वाद से बिल्कुल पूरा होगा। त्रिशुखिया के एक सेठ जी आए हैं, उन्होंने कहा है पंखे वो लगवा देंगे। बाबूजी आप खुश नहीं हुए? पंखे तो लगवा देंगे, मगर बिजली का खर्चा कहाँ से आएगा? ये तो है बाबूजी। ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। वाह क्या बात है। बगारत ये चमानत बरबहार मिन्नते हाश की गुल बरश्ताएं तू शास्ताज तुर्मनून। भाई हम आप लोगों को एक बात बताते हैं, जब भी हम ऋषि अगस्त्य को ध्यान में देखते हैं तो हमें वो एक छोटे कद वाले आदमी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसकी लंबी दाढ़ी है और जो थोड़ा लंगड़ाता है। वो नेचर में
प्राकृतिक आपदाओं के इंचार्ज हैं। कभी कभी हमें लगता है कि वो इस संसार में ही हैं, लेकिन अभी हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन भैया हम एक बात और बताते हैं तुम्हें। हिमालय पे एक और ऋषि हैं जिनका चेहरा डॉक्टर बर्धाचारी से बिल्कुल मिलता है, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि दोनों बिल्कुल एक से ही दिखाई देते हैं। उनका नाम तो अभी हमें याद नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो भी कहीं संसार में ही हैं, और वो मौसम के इंचार्ज हैं। जब भी कोई काम करना ज़रूरी होता है और कोई हुक्म दिया जाता है तो मौसम को बदला जा सकता है, और तब नेचर का काम थम जाता है। बाबूजी, वो ऋषि कहीं विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, आत्री या ऋषि भरद्वाज तो नहीं? हाँ हाँ, उनका नाम अत्रि है, अत्रि मुनि है। ये बड़े हैरानी की बात है कि उनका नाक नक्श डॉक्टर साहब से बिल्कुल हूबहू मिलता है, वही रंग, वही कद, यहाँ तक कि दोनों एक ही लगते हैं। अच्छा, मालिक चलते हैं। एक बार एक आदमी को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, तो वो उसके घर गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, कौन है? तो उसने कहा, मैं हूँ। तो लड़की ने कहा कि यहाँ मैं और मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो वापस चला गया। कुछ दिन बाद फिर वो उससे मिलने गया। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, कौन है? तो उसने कहा, मैं हूँ। तो लड़की ने कहा, बोला नहीं था मैंने तुमसे यहाँ कि मैं और मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तो फिर वापस चला गया। लेकिन सोचने लगा कि क्या बात हो गई जो इसके मिजाज में बदलाव आ गया। अब वो उस लड़की को याद करने लगा। तो जब वो आंख बंद करता था तो उसे अपनी जगह वो ही दिखाई देती। तब उसे समझ में आया ये कंडीशन तो उस लड़की के पास पहले से ही थी। वो फिर गया उससे मिलने। दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से फिर आवाज़ आई कि कौन है? इस बार उसने कहा, तुम हो, और दरवाज़ा खुल गया। अरे वाह! तो देखा भैया, ये यात्रा मैं से तुम तक की होती है। ये आई है जो दरवाज़ा बंद रखता है। जब तुम हो जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। बाबूजी, आप हमको रूहानियत की तालीम देते हैं, लेकिन खुद पीते हुक्का हैं। भाई, गाय खाती तो घास है, पर देती तो दूध है। बाबूजी, लिबरेशन मिलने में कितना समय लग जाता है? अरे साहब, क्या कहें आपसे। एक अच्छी रूह को भी लिबरेशन मिलने के लिए 1000-2000 साल तक लग सकते हैं। वो इस दुनिया के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। लेकिन अगर कोई पर्सनालिटी मिल जाए तो यह काम 2-4 मिनट में हो सकता है। सिर्फ एक विल लगाने की ज़रूरत होती है कि फला फला आदमी लिबरेट हो जाए, और वो लिबरेट हो जाता है। भैया, अगर पर्सनालिटी मौजूद है तो ये काम मुमकिन है। चाहे आदमी बुरा हो या अच्छा, वो किसी को भी लिबरेट कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि बुरे आदमी को लिबरेट करना नेचर के खिलाफ है। लेकिन किसी के सामने मास्टर हो तो कोई उसे छू भी नहीं सकता, चाहे खुदा ही क्यों ना हो। बाबूजी की बीमारी के कारण उनका यूरोप टूर 1974 में कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन ओवरसीज अभ्यासियों के गहरे प्यार ने बाबूजी को फिर से यूरोप जाने के लिए तैयार कर लिया।
बाबूजी और मैं 6 मई 1976 को डेनमार्क के लिए रवाना हुए और कोपेनहेगन पहुंचे और वहां 14 मई तक रुक के वहां से म्यूनिक जर्मनी गए। फिर 3 दिन वहां रुकने के बाद 17 मई को म्यूनिक से जिनेवा चले गए। 20 मई को जिनेवा में यूरोपियन प्रिसेप्टर्स की मीटिंग होटल ड्यू मॉन्ट में हुई। इस मीटिंग में मेरे यूरोपियन बॉडी बनाने के सुझाव का कुछ प्रिसेप्टर्स ने विरोध किया, जिसको बाबूजी ने यह कहकर खत्म कर दिया कि आई डोंट वॉन्ट डिसऑर्गेनाइजेशन, सो वी गो टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। वी कम फ्रॉम इंफिनिटी, सो वी फील लोनली हियर एंड सर्च फॉर अदर्स टू हेल्प अस और टू बी विद अस। दिस इज नेचुरल, सो ऑर्गेनाइजेशन कम्स इन टू बीइंग। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हमने 22 मई को जिनीवा से नीस फ्रांस जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बाबूजी ने मुझे बताया कि उन्हें ऊपर से आदेश आया है कि आज का टूर आगे को बढ़ा दिया जाए। 25 मई को हम जिनीवा से नीस फ्रांस पहुंचे। 30 मई को यूरोपियन प्रिसेप्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें 23 प्रिसेप्टर्स मौजूद थे। 10 जून को हम फिर वापस कोपेनहेगन डेनमार्क चले आए। 17 जून 1976 मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। सुबह के 9:30 बजे लोकल यूरोपियन टाइम पर। पार्थ सारथी, हमें अफसोस है कि पिछले 5 दिनों में हमने तुम्हें कुछ खाने की इजाज़त नहीं दी, पर भाई देखो, ये ज़रूरी था। नेचर में पार्षद की जगह खाली हो गई थी और हम चाहते हैं कि ये जगह हम तुम्हें दे दें। हमें काम करना जल्दी ज़रूरी था, वरना नेचर अपनी नीड कहीं और से पूरी कर लेती। अब तुम पूजा शुरू करो। That's all. लाला जी महाराज के आशीर्वाद से आज तुम्हें पार्षद की जगह दे दी गई है। ये नेचर में दूसरा सबसे बड़ा ओहदा है, महापार्षद के सिर्फ नीचे। हमें भरोसा है अब तुम इसके लायक काम करोगे। जी बाबूजी, मैं कोशिश करूंगा। 22 जून को हम कैस्ट्रॉप एयरपोर्ट कोपेनहेगन डेनमार्क SK 987 फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। My dear Parth Sarthi, I have granted provisional permission to Mr. K.V. Reddy and his wife, who have come from Malaysia. They have invited me to visit their country, and I have decided to go for a tour of Malaysia, Singapore, and Ceylon. I want you to accompany me for this tour. Please arrange for leave in December and set other procedure in motion. Yours affectionately, Ramchandar. वेलकम टू मलेशिया बाबूजी। आइए बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। देखा आपने, बाबूजी ने बैच पहना हुआ था। मैंने तो पहना भी नहीं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। मैं भी कभी कभी सत्संग में बैच लगाना भूल जाती हूँ। यही सिखाने के लिए शायद बाबूजी ने बैच पहना था।
Babuji, who is God? One who comes out of himself is God. I am following another guru for last 8 months. He has given me mantra. Can I follow the mantra and also your practice? I must tell you plainly that you cannot have two channels. One may interfere with the other. You may stop one for some time and follow the other to know which one is better. I cannot understand why people cannot change their guru. A guru is taken for one's own spiritual progress. And if he cannot give what you want, you must change the guru. Of course, you must be respectful to him, but you must also tell him that since he is not able to give you what you want, you are going to another person. Are there any realized souls amongst your disciples? I'm asking this question because if there are any of such people, I would really like to have darshan. I really love to have darshan of such souls. Well, I'm telling you, there are a few who are almost at the top and others who are progressing towards the goal. Darshan means to see. In spirituality, when one has darshan of great soul or a guru, it is not enough to see merely the physical form of guru. Real darshan means to see him with higher vision, so that one can see the real guru behind the external form of guru. This is what darshan means. My master has repeatedly said that many have come to see him, but very few actually see him. What about the Kundalini? Does it play any part in your yoga? Kundalini power, if awakened, is used for work in the higher world. Not everyone is given work in the higher world, so it is not necessary for all. There must be just one or two such persons who are given work in the higher world. Also, it is not necessary for spiritual progress. I will tell you one thing. Suppose there is a person whose all the centers are awakened by Master's grace. Then why leave this one thing alone untouched? So it may be done in such cases. Have you read Ouspensky? So he considers Kundalini as a bar to progress. You may think about this. You are a well-read person. Babuji, I want to know everything. How to do it? There is a Persian couplet which says, "All I have known is that I know nothing." बाबूजी की एक खास आदत है, वो कोई भी चीज़ सीधे नहीं मांगते, केवल इशारा कर देते हैं। कभी मुझे लगता है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं कंफर्मेशन के लिए उनसे पूछता हूँ, तो वो कहते हैं, देखो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है तो ले आओ। कभी कभी वो ऐसा भी दिखाते हैं कि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहते हैं, अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा, समय बर्बाद करेगी। खाने को भी लेकर यही हाल है। उनसे खाने के लिए पूछो तो कहते हैं, हमें भूख नहीं है, पर तुम लौंडे हो, देर हो गई है, तुम्हें खा लेना चाहिए, हम तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे। तो फिर क्या बाबूजी खाते हैं? जब हम खाना खाने बैठ जाते हैं तो मैं खाने को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी जगाता हूँ, खाने की तारीफ करके। तब वो कहते हैं, देखो, इन्होंने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, अब बना ही दी है तो मैं एक चम्मच ये, एक चम्मच ये और एक चम्मच ये ले लूँगा। पर देखो, तुम्हें दुगना खाना पड़ेगा, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। बाबूजी, क्या थोड़ा थोड़ा खाता है? इतना तो बच्चा भी नहीं खाता। थोड़ा सा, बहुत प्यार से बनाया बाबूजी।
अभी तो और भी खाना है आपको। भाई हमें साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। देखो हमने कितना खा लिया है। ये सब इतना अच्छा बना है कि हम बाकी दिनों से दुगना खा गए। खैर ये आसानी से पच जाता है, यही इस खाने की खासियत है। बाबूजी, आप यहाँ दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं। इतना तो आप अपने घर में भी नहीं खाते। माना कि खाना स्वादिष्ट बना है, पर क्या यही एक कारण है? मैंने देखा है कहीं कहीं तो आप बड़े चाव से खाना खाते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं, चाहे आपको खाने के न्योते पर ही क्यों ना बुलाया गया हो। बाबूजी, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? आप खाने का इनविटेशन तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर वहाँ जाके कुछ खाते नहीं हैं। देखो पार्थ सारथी, न्योते कई किस्म के होते हैं। कुछ लोग हैं जो हमें बुलाते हैं क्योंकि उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है। ऐसी जगह जाना, जाकर खाना खाना हमारे लिए खुशी का सबब बन जाता है। ऐसी जगह तो हम बिन बुलाए भी चले जाते हैं। दिल इशारा करता है और हम वहाँ जाने के लिए बेताब हो जाते हैं। बाबूजी सांबर? बस बस, अब और नहीं। बाबूजी, अभी आपको दूध भी पीना है। हो। बाबूजी, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इपो और तिलोक अनसुन यात्रा का प्लान कैंसिल कर दिया और सीधे पिनांग चले आए। इसी एक दिन में 15 नए लोगों ने अभ्यास शुरू कर दिया। ये सब लाला जी साहब का काम है। ऐसा गुरु मिलेगा कहीं? अब आगे सिंगापुर का क्या प्रोग्राम है? प्लीज कम। Babuji, he is Tanky Lang from Singapore. We call him Johnny. He has come here to discuss with you your Singapore plans. Pranam, Babaji. Have you started meditation? No, Master. I plan to start it when you come to Singapore. पार्थ सारथी ने रावण के आखिरी उपदेश वाली कहानी सुनाओ। Master has asked me to narrate you a tale from great Indian epic Ramayana. When the great battle between Lord Ram and powerful demon Ravana was over, Ravan lay dying on the battlefield. Then Lord Shri Ram asked his younger brother Lakshman to go to the Ravan and ask his last advice. When he went up to him, Ravan said, "To do good, don't delay." I understand what Master says. I will begin meditation immediately. All right, then sit for meditation. Please start. बाबूजी फिर कब आएंगे? ये तो आप पर निर्भर करता है। बाबूजी, आप फिर आएंगे ना? ये तो लाला जी की इच्छा पर है। हम फिर आएंगे।